Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 326. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى القيامة. سائنس رے وہ ماں جھیل کر بنا جان جیو جی چار جن شریا شاک حکمنے تے تو پامی دا موکھ دیدار پوری کرنی دا سچا یار آہو نس لنگی دا پار سایاں جی بھی اے میرا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد وعلی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. لفظ عبادت عربی زبان کا بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک غلام ہے، اس کو عبد کہتے ہیں. غلام جس طرح سے اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے وہ عبادت کے طور پہ گنی جاتی، یعنی اللہ کی عبادت کی بات نہیں کرتا، اپنے آقا کی جو وہ خدمت کرتا ہے وہ غلامی ہے. ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کو غلامی سے بھی زیادہ درجہ دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر فرماتے ہیں کہ اپنے سائیں کو، اپنے آقا کو، اس کو یاد کرنے میں، اس کی خدمت کرنے میں، اس کو خوش کرنے میں سستی، غفلت اور ڈھیل نہ کرنا 4 دن کی زندگی ہے. جنہوں نے اچھی طرح سے سچی نیت سے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی خدمت کی، ان کو نجات ملے گی. میں یہاں پاکستان میں ایک ہفتہ ہوا آیا ہوں. 11 سال کے بعد میں آیا. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ایک تو جماعت بڑی ہو گئی سائز میں، اور دوسرا الحمدللہ آپ کا ایمان، آپ کی محبت، آپ کے طور طریقے دیکھ کے مجھے بہت اچھا امپریشن ہوا. دنیا بھر میں سب سے بڑی جماعت کراچی کی جماعت ہے. اتنی بڑی جماعت اور کہیں بھی نہیں. ایک اور چیز نے مجھے امپریس کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں کی جو جوان آدمی ہیں، یہاں کے وہ لوگ، عورتوں میں، مردوں میں، جو امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتے ہیں. یہ عبادت کے درجے کی بات ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ کانک پارو کو خط لکھا تھا. اس میں مولا فرمایا کہ عبادت اچھی چیز ہے، لیکن عبادت کی بعض خامیاں یا انسان کی کوئی غفلت، انسان کی کوئی غلطی، بھول چوک امام کے گھر کی خدمت کرنے سے پر ہوتی ہیں. اگر ہماری کوئی غلطی رہ جاتی ہے عبادت میں، یا ہمارے عبادت میں کچھ خامی رہ گئی، تو مولا فرماتے ہیں کہ جماعت کی خدمت کرنے سے وہ خامی پر ہوتی ہے. کیوں کہ عبادت کا جتنا درجہ ہے مولا نے جماعت کی خدمت کا درجہ اتنا ہی بتایا ہے. ایک عابد ہے، خوب عبادت کرتا ہے. ایک دوسرا بندہ ہے اس مولا کا، وہ عبادت بھی کرتا ہے، جماعت کی خدمت بھی کرتا ہے. حقیقت میں اس کا درجہ بہت بڑا ہے. اس عابد سے یہ آدمی زیادہ اچھا ہے کہ جو عبادت بھی کرے اور امام کے گھر کی خدمت بھی کرے. عبادت کے اندر جس طرح سے ہم کو یکسوئی چاہیے اور خدا کی محبت چاہیے، مولا کی خدمت کرنے کے اندر بھی ہمیں یہ چیز چاہیے. بہت برسوں پہلے
आंखों देखा एक वाकया मैंने किसी वक्त वाज में जिक्र जरूर किया है, आज मैं दोहराना चाहता हूं। इस वाकया को 50 बरस हुए हैं, शायद 52 या 53 साल हुए। 1938 को 52 साल हुए। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि बम्बई आए। जब मौला की गाड़ी पहुंची, नीचे साहब ने कुछ बातें चीतें की। जब आप हुजूर गए लिफ्ट में, एलिवेटर में बैठने के लिए, तो बत्ती चली गई। अब लिफ्ट तो काम नहीं कर सकती थी। मौला ने फरमाया, अच्छा मैं सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगा। यहां जिस तरह सीढ़ियां हैं, ये थोड़ी सीढ़ियां 10-12 सीढ़ियां चढ़ के थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आता है। यहां एक कुर्सी रखी गई कि मौला यहाँ थोड़ा आराम करे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह आस्ते आस्ते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ आके बैठे। अब जब इमाम ने यह कहा कि मैं इस सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगा, फौरन जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने सब सीढ़ी के रास्ते वगैरह बंद कर दिए। अब हुआ क्या कि इस दरमियान 7-8 बरस का एक लड़का, लंबी गोंडे की टोपी पहनी हुई, इतना बड़ा जग उठाया हुआ, वो यहां अटक गया। ना वो नीचे उतर सके ना ऊपर जा सके। उसको एक साइड पे खड़ा कर दिया, स्काउट्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई, आराम से अदब से खड़ा था। मौला कुर्सी पे बैठे, थोड़ा दम लिया, इधर उधर देखा, उस लड़के पे नजर पहुंची। मुगला ने उस लड़के को देखा और वो जो जग कितना बड़ा था उसका साइज देखा, तो साहब उसके पास गए, उसको पूछा, तुम ये जग उठा सकते हो? कहता, हाँ साहब, इतना बड़ा जग उठा सकते हो? उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी जिस्मानी हालत के हिसाब से मौला को दुनिया भाने लगा कि ये जग बहुत वजनदार है, ये किस तरह उठाता होगा। अब ये लड़के का काम सप्लाई करना था। ऊपर जो लड़के जमात को पानी पिलाते थे, ये बड़े बड़े जग लेके उनके छोटे छोटे जगों में डाल दे रहे और फिर जाके नीचे से दूसरा लेके आ गए। मौला फरमाया, मुझे उठा के बताओ। वो ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ के नीचे झुक के 2 हाथों से उठा के इस सीढ़ी पे रखा, फिर वो ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ा, फिर 2 हाथों से उठा के इस सीढ़ी पे रखा। एक एक सीढ़ी चढ़ता जावे, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है कि सारा जग उठा के ऊपर जावे। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत खुश हुए, उसको नजदीक बुलाया, अपने बदन मुबारक से उसको लगाया, उसके सिर पे हाथ फेरा। फिर जब ऊपर मौला आए, जमात को फरमान किया। मौला फरमाया कि इस लड़के की, साहब ने खड़ा किया लड़के को, मैं इस लड़के की हिम्मत से बहुत राजी हुआ। मोमन हमेशा हिम्मत वाला होता है। सब उसको कहते हैं, तुम मेरी जमात को पानी पिलाते हो, वल्लाह मैं तुमको हौज़े कौसर का पानी अपने हाथ से पिलाऊंगा। इमाम की जो खिदमत है, इसी का नाम इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा शरीफ में बैठे थे। इल्म वाले लोग जानते हैं कि रसूल अल्लाह के हुजूर में सेक्रेटरी के तौर पे हजरत अनस बिन मालिक 10 बरस काम करते थे। अनस बिन मालिक ने रसूल अकरम की 10 बरस सेक्रेटरी के तौर पे खिदमत की, जो कि आखिर में गदीर के मौका के ऊपर अनस बिन मालिक, जब अली ने मस्जिद के अंदर आके पूछा कि कौन कौन गदीर के टाइम पे था, तो इसने, अनस बिन मालिक ने हाथ नहीं उठाया था। फिर मौला ने उंगली रख के कहा कि अनस तुम भी था? चुप रहा। हुजूर ने फरमाया बोल, तो कहता नहीं मुझको याद नहीं। मौला अली गजबनाक हुए, फरमाया अनस झूठ बोलोगे अंधे हो जाओगे। अनस बिन मालिक अंधे हो गए। हजरत अनस बिन मालिक साथ के कमरे में नमाज पढ़ रहे थे। रसूल अकरम को कोई जरूरत पड़ी, आवाज दी, है अनस। उसने जवाब न दिया। दूसरी दफा हुजूर ने फरमाया, आए अनस। उसने जवाब न दिया।
तीसरी दफा जोर से पुकार की, या इब्न मालिक, आए मालिक के लड़के। तब भी उसने जवाब न दिया। नबी करीम उठे कि ये अंदर तो है, जवाब क्यों नहीं देता। उठ के जब आपने झांका तो उस वक्त वो सलाम फेर रहे थे, दुआ, नमाज के बाद जो दुआ होती है वो दुआ कर रहा था। हुजूर कहते हैं, अनस, मैंने तुमको पुकारा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। कहते, या नबी मैं नमाज पढ़ता था। फरमाया, किसने कहा तुझे नमाज पढ़ने के लिए। कि सरकार आपने। तो फिर मैं तुमको बुला रहा हूं तो तुम क्यों नहीं आता। तो हुजूर ने उससे कहा, या नबी, तो क्या आप मुझे नमाज में पुकारे तो मैं नमाज छोड़ दूं। फरमाया, हां, क्योंकि मेरा हुक्म तेरी नमाज से ज्यादा है। इमाम के घर की जो खिदमतें हैं वो इबादत के दर्जे की हैं, क्योंकि इन खिदमतों में खिदमत करने वाले के दिल में इमाम की मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत है कि जो मुफ्त खिदमत करने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा मजहब, हमारी जमात, हमारा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यूनिक है। दूसरी दुनिया के अंदर और कोई ऐसा तरीका नहीं। हम तो अपने मौला के घर की खिदमत के लिए तड़पते हैं। पगार लेने की, तनख्वाह लेने की बात तो छोड़ दो। ये हमारी जमात के ये लीडर, ये हमारी जमात के अमरदार, या हमारी जमात के अंदर और भी वो लोग जो लीडर या अमरदार नहीं है, वो इमाम की खिदमतें करते हैं। एक पैसे की भी उन्होंने कभी डिमांड नहीं की। यही नहीं बल्कि जरूरत पड़ती तो खीसे से खर्च भी करते हैं। इमाम के घर की खिदमत करते हैं। कोई भी तरह की उसके अंदर लालच या खुद गर्जी नहीं रखते, बल्कि जरूरत पे अपने खीसे से पैसे खर्च करते हैं। ये इमाम ज़मान के घर की मोहब्बत का एक आला दर्जे का सबूत है। मौलाना हज़रत इमाम इस बात पर फख्र करते हैं कि मेरी जमात में वो चीज है जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं। सैकड़ों साल से हमारा ये तरीका चला आया। इस बरस जनवरी महीने के अंदर न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई। यह मीटिंग इस तरह हुई कि आप लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम होगा कि दुनिया के अंदर 7-8 बहुत बड़ी बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन हैं, जैसे कि रॉकेफेलर फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, डेल कार्नेगी फाउंडेशन है, ऐसी छोटी छोटी और भी हैं, मगर ये 3 तो सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इन्होंने गए लगभग 10 बरस से आगा खान फाउंडेशन की रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो ये बड़े हैरान हुए कि आगा खान फाउंडेशन का इतना खर्च नहीं और इतना बहुत काम होता है। तो हज़रत इमाम को इसमें इनवाइट किया गया और मौला को इन्होंने कहा कि योर हाइनेस, हम ये जानना चाहते हैं कि आगा खान फाउंडेशन जो है कौन सा ऐसा उसके अंदर एक गुर है कि जिसकी वजह से इतना कम खर्च में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हमको जो आमदनी मिलती है 70% वो एडमिनिस्ट्रेशन और तनख्वाहों में जाती है, सिर्फ 30% है कि जो हकीकत में लोगों को मदद के तौर पे रकम मिलती है। और आगा खान फाउंडेशन की हालत ये है कि 30% से भी कम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं और 70% मदद में और हकीकत में जहां जरूरत है वहां जाते हैं। मौलाना हज़रत इमाम बहुत हंसे। सब फरमाया, मेरे पास मेरे काम करने वाले जो हैं उसमें ऑनररी वर्कर ज्यादा है। मेरा सारा काम जो है मेजॉरिटी ऑनररी वर्कर से बनता है। वो तनख्वाहें नहीं लेते, मुफ्त काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं और फिर यहां भी जब जरूरत पड़ती तो छोटे मोटी जगह पे अपने जेब से खर्च कर देते हैं। तुमको ये चीज नसीब नहीं और हकीकत यही है। हज़रत इमाम की मोहब्बत की खातिर, हज़रत इमाम को राजी करने की खातिर हम क्या से क्या कर सकते हैं। और ये हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं। यहां की जमात के अंदर ये स्पिरिट बहुत ज्यादा है। कराची के अंदर, कराची की जमात में खसूसी तौर पे, मैं अभी तक अब कंट्री नहीं गया, 11 साल के बाद इंशाअल्लाह जाऊंगा, लेकिन कराची की जमात में हज़रत इमाम के घर की खिदमत का जो मादा
اور اس خدمت کے جو شرارے ان کے دل میں سینے میں دبے ہوئے ان کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خوشی سے امام زمان کے گھر کی خدمت کرے، یہ ایک عظیم بخشش ہے اور اس کے لیے آپ خوش نصیب ہو۔ دین و دنیا کے اندر اس کی مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو بدلا دے گا۔ مولانا حضرت امام ہمارے ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ امام سلطان محمود شاہ فرمایا ساری دنیا کے ماں باپ کو اکٹھا کر کے ان کی محبت کو ایک جگہ جمع کرو تو بھی میری محبت تمہارے لیے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ مولانا حضرت امام نے آج جو تعلیقہ مبارک پڑھا گیا، جاتے وقت جماعت کو ہدایت بھیجی۔ مولانا حضرت امام نے کینیڈا اور امریکہ کے اندر بھی اس بات کے لیے ہدایت بھیجی کہ اس وقت دنیا کے حالات تھوڑے بگڑ رہے ہیں۔ انڈسٹریل کنٹریز جو ہیں اس کے اندر ریسیشن اپنا کام کر رہی ہے۔ گئے 10 مہینے کے اندر صرف کینیڈا میں 4300 سے زیادہ بینکرپسیز فائل کی گئی۔ امریکہ کے اندر اس سے زیادہ پرسنٹیج آتی ہے، کیونکہ مینجمنٹ کا خرچ بہت ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جب ایک بہت بڑی کمپنی گر جاتی ہے تو بہت سی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو اپنے ساتھ لے ڈوبتی ہے۔ یہاں یہ حالت نہیں ہے جس طرح سے نارتھ امریکہ کے اندر ہے۔ امام کا یہ اشارہ اور یہ ہدایت کہ تم اپنے خرچ کو گھٹاؤ، یا جب کبھی بھی خرچ کرنے کا موقع آئے تو تم یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر ہمیں نقصان یا فائدہ کتنا حد تک ہے۔ اور اگر وہ لوگ جو بزنس مین ہیں وہ کہیں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امام فرمایا کہ پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے ہاتھ میں کیش کتنا رہے گا، کیونکہ بزنس کے اندر کیش ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ نقصان ہوتا ہے اور لاکھوں کی چیز ہزاروں میں دینی پڑتی ہے۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں بھول نہیں کرتا اندازے میں تو میرا کہنا یہ، اور میں شاید سچ بھی کہہ رہا ہوں، کہ آپ لوگ بہت زیادہ خرچ کرنے والے نہیں ہو۔ آپ لوگوں کی حالت بہت اچھی ہے، امام کے فرمان کے نزدیک نزدیک تو پہلے سے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، کو جو خدا ہے وہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے بغیر ہمارا کام چل سکتا ہے، اگر پھر بھی ہم خرچ کریں تو وہ فضول خرچ ہے۔ اسی وقت انسان کوئی اچھی چیز اگر توفیق ہے اس کی لے لے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کنجوس بننا بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ بخیل تو عدو اللہ ہے، خدا کا دشمن ہے بخیل، کہ اس کے پاس ہے اور پھر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ لیکن جو فضول خرچ ہیں وہ بھی خدا کی نظر کے اندر پیارے نہیں ہیں۔ فضول خرچی جو ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ آدمی اپنی موٹر میں، کھانے پینے میں، کپڑے وغیرہ میں، گھر کے فرنیچر میں، گھر کی ڈیکوریشن میں، ایسی چیزیں کہ جن میں بڑائی ظاہر کرنے کا خیال آ جائے، جس میں یہ ہوئے کہ لوگ مجھے آ کے آشش کریں، یہ فضولیات میں لکھی جاتی ہیں۔ اور فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک پیارا نہیں ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ عبادت والوں کو خدا تعالیٰ یہ سمجھ دیتا ہے کہ وہ اپنا دکھاوا کرنا نہیں چاہتے۔ آسٹنٹیشیس لیونگ جو ہوتی ہے، یعنی جس میں لوگ آ کے دیکھیں میرا گھر کیسا عظیم ہے، واہ واہ واہ، ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، یہ جو شان و شوکت بڑھا کے دوسروں کو دکھانا۔ اگر کوئی ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور وہ 10-20 لاکھ خرچ کرتا ہے تو وہ شاید مانا بھی جائے، لیکن ایک آدمی کہ جس کی توفیق نہیں، پھر بھی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ چیز ناپسند ہے۔ حضرت عثمان جو تھے 3 خلیفہ، ان کا لقب لوگوں نے غنی ڈال دیا، عثمان غنی، حالانکہ بڑے مالدار ہونے پر بھی وہ کنجوس بہت تھے۔ تو رسول اکرم نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ اے عثمان،
खुदा ने तुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, अच्छे कपड़े तो पहनो, क्योंकि वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते थे। बखीली और इसराफ यानी कंजूसी और फजूल खर्ची के दरमियान इंसान को खुद ही फैसला करना चाहिए कि मेरी तौफीक क्या है, कहां तक मैं कंजूस हूं, कहां तक मैं फजूल खर्च हूं। ये हमें ईमान के अंदर काम आएगा। एक आदमी जो फजूल खर्च है उसके ईमान में खलल पड़ेगा, एक आदमी जो कंजूस है उसके ईमान में भी खलल पड़ेगा। मोमन के लिए दरमियानी रास्ता बेहतरीन है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का मैं एक आपको तालीका सुनाऊं। ये बात है 1954 की। मार्च के महीने में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने कैरो के अंदर, हमारे एक मुअद्दी और वजीर थे, बाद में काउंट बन गए, अब्दुल्ला हाशिम गांग जी, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। मौला के उस जमाने के अंदर वो नजदीक रहते थे। मौला ने उनको एक खत दिया, फरमाया अब्दुल्ला मेरा ये तालिका पब्लिश नहीं करना, सर्कुलेट नहीं करना, मगर तुम पर्सनली जाके मेरे इस तालिके को जमात के अंदर पढ़ो। देखो तुम्हारा सबसे पहला जो मुकाम आएगा वो एंटेबे होगा, प्लेन एंटेबे यानी कंपाला से 20-22 माइल पे उतरता है। तो फरमाया पहले तुम कंपाला में, किसुमू में, इसके बाद मसाका, यानी किसुमू बाद में आता है, मसाका पहले आता है। कंपाला, मसाका, किसुमू, नैरोबी, मुबासा, ज़ंज़िबार, दार एस सलाम, डोडोमा, मुआंजा, साहब ने उसको रूट बनाई। दार एस सलाम जब आए और उन्होंने तालिका पढ़ा, उस तालिका के एग्जैक्ट अल्फाज मुझे याद नहीं है, मगर इमाम ने उसमें इस तरह शुरू किया कि मेरे रूहानी बच्चों, दुनिया में इस वक्त मंदी बहुत तेजी से चल रही है। ये वो जमाना था दीनदारों कि जब कोरिया की वॉर चलती थी, और आपको मालूम है कि जहां दुनिया के अंदर कोई भयानक लड़ाई होवे तो उसके असरात सारी दुनिया में पहुंचते हैं, क्योंकि तमाम जरूरत की चीजें सबसे पहले आर्मी को दी जाती हैं। आज इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो जंग के बादल छाए हुए हैं उसका भी असर सारी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। ये जंग के भयानक बादलों का क्या होगा मौला के सिवा और कोई सच्चे तौर पे नहीं जान सकता, लेकिन जरूर उसका असर सारी दुनिया पे है। अगर ये लड़ाई लगी तो दीनदारों बहुत बड़े नुकसानात होंगे। मौला फरमाया कि इस वक्त दुनिया में जो मंदी है, मैं अपने बच्चों को इस बात की तलकीन करता हूं कि जब तुम कोई भी अपने व्यापार के लिए कोई ऑर्डर करो तो तुम सारी दुनिया के हालात का ध्यान करके ऑर्डर करो। देखो इस वक्त कॉटन की चीजें घट रही हैं और सिंथेटिक फाइबर जो है जैसे कि नायलन वगैरह ये चीज बढ़ रही है। तो तुम ख्याल करो कि अगर कॉटन की जो मार्केट है वो किस तरह ऊंची नीची होती है, उस हिसाब से तुम उसका ऑर्डर करो। ऐसा एक दो मिसालें मौला ने दी हैं। फिर नीचे मौला दूसरी दफा दूसरे पैराग्राफ में फरमाते हैं, मैं अपने बच्चों को बहुत दफा बोलता आया हूं कि तुम्हारी जितनी आमदनी है उतना खर्च मत करो। अगर तुम्हारी तौफीक है कि तुम 50% बचत कर सकते हो तो मौला ने लिखा है कि 50% बचत करो। अगर तुम 50% बचत नहीं कर सकते, यानी 50% बचत करना किस तरह से मैं आपको महज समझाना चाहता हूं कि किसी आदमी के घर का खर्च 2000 रुपए है और उसको 10,000 की आमदनी होती है तो वो इजीली 5,000 रुपया बचत कर सकता है, फिर भी उसके पास खर्च करने के लिए पैसे बचे होते हैं। मौला फरमाया अगर 50% की बचत करने की तौफीक नहीं तो तुम 25% करो, 25 की तौफीक नहीं तो 10% करो, 5% करो। आखिर में लिखते हैं कुछ न कुछ जरूर बचत करो। देखो मेरे रूहानी बच्चों, दुनिया के अंदर तुम अगर बचत करोगे तो वो तुम्हारे दीन को मजबूत करेगी। दो चीजें हुकूमत के लिए चाहिए, एक आर्मी और दूसरा माल। मौला फरमाया तुम माल जमा करो, बचत करो, पैसे वाले बनो,
दूसरी चीज खुद ब खुद आ जाएगी। सारी दुनिया के लोग मेरे पास आके मेरी नसीहत, मेरा मशवरा, मेरा एडवाइस लेते हैं। मैं अपने रूहानी बच्चों को एडवाइस देता हूं, पूछे बगैर देता हूं, तो भी वो मानते नहीं। इस तरह मौला ने अपना तालीका खत्म किया। मोमिनो, इस वक्त दुनिया के अंदर हालात अच्छे नहीं। जब दुनिया की तकलीफें इंसान को बहुत तंग करती हैं, खास तौर पे माली तकलीफ जब बहुत तंग करती है, तो उसका असर उसकी हेल्थ पर भी पहुंचता है, उसकी आबरू के ऊपर भी पहुंचता है, और बाज़ औक़ात उसका ईमान खराब हो जाता है। इसलिए अपनी माली हालत को दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरत है इस बात के लिए कि ये दीन को ताकत देगी। अगर जमात के अंदर कोई आदमी माली तौर पे तकलीफ और दुख में है, तो जमात का एक बच्चा तकलीफ में है, अगर 10 होंगे तो 10 बच्चे तकलीफ में हैं। माली हालत को सुधारने के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है कि जितना बन सके हम अपने खर्च कम करें। ये भी मौलाना हज़र इमाम की एक खिदमत के तौर पे बात आती है। तो जिंदारो, आज के इस मुबारक मौका के ऊपर कि जब मौलाना हज़र इमाम ने जमात को याद किया, दुआ दी है, इंशाअल्लाह हालात इधर के सुधर रहे हैं। आपका मुस्तकबल बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। मैं दोबारा कहता हूं कि निहायत ही शानदार है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन हैं जगह जगह किए हुए। मौला फरमाया, पाकिस्तान हमने बनाया, हम इसका मुहाफिज रहेंगे। और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के ज़माने से आज भी हज़रत इमाम पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और पाकिस्तान का मुस्तकबल क्या है उसका इशारा गिनानों में बहुत है। इसलिए मैंने आपको 3 दफा दोहरा के कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबल बड़ा शानदार है। अगरचे वक्त लगेगा, 25-50 बरस लगेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ेंगे भी, सुधरेंगे भी। मौला आपको दीन और दुनिया में सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में खैर व बरकत देवे, अपने फरमान पे अमल करने की तौफीक देवे। मौलाना हज़र इमाम दस्तन सुकरीत में पूरा रखे, हर किस्म की बदियों बुराइयों से बचाए, हर किस्म की आफत बलाएं दूर रखे। मौला आपकी दुआओं को कबूल करे, आपके अच्छे कामों को अच्छी तौफीक देवे। मौलाना हज़र इमाम जमात में, कुनबों में, कबीलों में मोहब्बत, सुख, शांति, इत्तफाक देवे, बरकतें देवे, नवाजिशें देवे। मौलाना हज़र इमाम ज़ाहरबात दीदार नसीब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।